Now your first step is to identify the problem of is of natural convection or force convection. This is very important step. Now how to understand the problem is of natural convection or force convection. It's simple. In natural convection, there is no external force. The molecules are moving because of density difference caused by temperature difference. And in case of force convection, the molecules are moved by either fan, blower or compressor in case of gases, and pump in case of liquids. Means there is some external force applied with the help of these devices which just now I have listed. Now in numerical there are certain hints, because these words are not there. Density difference, pump, fan, blower, these words are not going to come in the numerical. Now you may ask me the question, sir, if these words are not there in the numerical, how we can understand the problem belongs to natural convection or forced convection? So there is a small trick. On that basis, you can definitely realize the problem belongs to natural convection or forced convection. And that trick I am saying to you. In case of natural convection, generally hot surface temperature is given and surrounding temperature is mentioned. Surrounding temperature is given. Means hot surface temperature is what? Ts, and surrounding is what? T infinity. That is given to you. But velocity of fluid is not given. And this is a trick by which you need to realize that this problem belongs to natural convection. Now you are saying, sir, how to identify the problem of forced convection? Hot surface temperature is given to you. Hot surface temperature is given to you. Then surrounding temperature directly or indirectly given to you. Now I will tell you what is meant by directly and indirectly, but definitely it is given to you. Directly means direct value is there, and indirectly means you require a small calculation there. So what is the meaning of that? That I will tell you later. But surrounding temperature data is given to you. And what is the difference here? Velocity of fluid or volume flow rate or mass flow rate is given in the problem. Velocity means capital V. Volume flow rate means what? V dot. And mass flow rate means what? M dot. For the fluid is given in the problem. This is the process, or you can say trick, by which you need to understand the problem belongs to natural convection or forced convection. So you can say natural convection and forced convection में Ts T infinity दिया जाता है. वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अगर अननोन है, मास फ्लो रेट नहीं दिया हुआ है या वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब समझो ये नेचुरल कन्वेक्शन है. और फोर्स कन्वेक्शन में टीएस और टी इंफिनिटी का डेटा दिया जाएगा और उसके साथ साथ मास फ्लो रेट, नहीं तो वेलोसिटी, नहीं तो वॉल्यूम फ्लो रेट. अगर इसमें से कोई भी एक डेटा है तो इसका मतलब समझो वो प्रॉब्लम फोर्स कन्वेक्शन का है. अभी आप बोलेंगे सर वेलोसिटी इज अननोन, नेचुरल कन्वेक्शन में वो क्यों नहीं दी जाती? इसका कारण है the fluid flow happens because of density difference and it is with negligible velocity, and that's why generally it is not mentioned in the problem. But in case of force convection, a force is given by some external device where energy is consumed, velocity is appreciable, notable, and that's why the value is generally mentioned. Sometimes they will mention velocity, sometimes they will give volume flow rate, and sometimes they will give mass flow rate. That means velocity is there by default. तो आपको समझना है कि वो प्रॉब्लम फोर्स कन्वेक्शन का है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड.
यहां तक समझे स्टूडेंट्स? हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ नेचुरल और फोर्स्ड? हेलो? Yes, sir. The second step to Yes, find sir. out LC. Second step is what? Found out LC. Now student, is it necessary to discuss in more detail? Why? Because formulas of natural convection and forced convections are already given to you. कब दिए थे बताओ मुझे? हेलो? लास्ट लेक्चर में, am I right? Yes, sir. दिए थे ना? लगा तो मैं लिख लेता हूं, अगर आपको चाहिए तो आप लिख लो। मैं यहाँ नेचुरल कन्वेक्शन लिखता हूं और यहाँ मैं फोर्स कन्वेक्शन लिखता हूं जल्दी जल्दी में। नेचुरल कन्वेक्शन, इन नेचुरल कन्वेक्शन जनरली द फ्लो इज एक्सटर्नल फ्लो। कौन सा फ्लो होता है? द फ्लो इज जनरली एक्सटर्नल फ्लो इन द न्यूमेरिकल, एंड इन फोर्स कन्वेक्शन द फ्लो इज इंटरनल और एक्सटर्नल। यहां दोनों ऑप्शन मौजूद है। एक्सटर्नल फ्लो मीन्स व्हाट? फ्लो ओवर द बॉडी, एंड इंटरनल फ्लो मीन्स व्हाट? फ्लो इनसाइड द पाइप और इनसाइड द डक्ट। अभी नेचुरल कन्वेक्शन की बात करते हैं, बस सारे फॉर्मूले में नेचुरल कन्वेक्शन के लिस्ट करता हूं। एक्सटर्नल फ्लो में फ्लो ओवर हॉरिजॉन्टल प्लेट, क्या? फ्लो ओवर हॉरिजॉन्टल प्लेट। LC is equal to area of surface, S stands for surface, divided by perimeter. And for that I told you, for example इसके across flow हो रहा है like this, and ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन B है, तो LC क्या हुआ रे? एरिया क्या हुआ रे? सरफेस एरिया A इंटू बी ना, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हुआ रे? A प्लस B इंटू 2। Am I right students? रेक्टेंगल है ना? Yes, sir. So this Yes, is sir. LC. This is flow over horizontal plate. Now I will go to the next. कॉलम मैं कंटिन्यू रखता हूं। लेफ्ट साइड का है नेचुरल कन्वेक्शन का और यहां है फोर्स कन्वेक्शन। अभी दूसरा, फ्लो ओवर वर्टिकल प्लेट, और वर्टिकल प्लेट के जगह मैं लिखता हूं वर्टिकल ऑब्जेक्ट। इट मे बी ए प्लेट और इट मे बी सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है। LC इज इक्वल टू वर्टिकल लेंथ, वर्टिकल डायमेंशन लिखता हूं मैं, डायमेंशन। तो स्टूडेंट मैं एग्जांपल देता हूं आपको। चलो, ये प्लेट मैंने वर्टिकल रखी है ऐसे, ये डायमेंशन ये है, ये डायमेंशन B है, और ये थिकनेस है C। तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज LC इन दिस केस? एनीबॉडी? A, B और C? ABC कौन सा? वर्टिकल डायमेंशन है ना फॉर्मूला, कम ऑन। हेलो? AC, sir. AC. हाँ, C और B और A? B. B. B, B. बिकॉज B. ये जो B, प्लेट sir. मैंने खड़ी की है वर्टिकली, तो दिस इज वर्टिकल डायमेंशन ना? अरे यस और नो? Yes, sir. दिस इज वर्टिकल प्लेट, Yes, सो sir. B इज अ वर्टिकल डायमेंशन। अभी इस सिलेंडर में दो डायमेंशन है, बताओ कौन कौन से? ये है डायमीटर और ये है लेंथ। तो एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज LC रे? वर्टिकल डायमेंशन, सो व्हाट? अरे जल्दी, अपूर्वो, somebody should respond यार, because we are having time less. Come on. L. 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 L, LC is L, vertical dimension ना? हाँ, so this is in case of natural convection. Now I will go to the third part. ये कल हुआ था लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, because I want to describe the whole process, entire process to solve the numerical. Next, horizontal cylinder. हॉरिजॉन्टल सिलेंडर क्या करेंगे आप? हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर कैसे प्लेस किया है रे? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है अभी। दिस इज योर D and this is your length. Come on, what is LC then?
diameter. LC is what? Diameter. And finally एक ही बचा है sphere. स्फीयर थोड़ी ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होती है. इट इज कैसे भी रखो, वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कुछ भी कह सकते हैं उसको. तो स्फीयर मींस लाइक दिस. एंड व्हाट इज एलसी? इट इज सिंपली डायमीटर. तो दिस इज द फॉर्मूलेज फॉर एलसी इन नेचुरल कन्वेक्शन. इसके सिवा एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसमें ही आएगा ये. नाउ आई विल गो टू द फोर्स कन्वेक्शन स्टार्टिंग से. फोर्स कन्वेक्शन में पहले मैं इंटरनल फ्लो के ऊपर जाता हूं. तो इंटरनल फ्लो के लिए कैसे डायग्राम निकालू रे मैं? एनीबॉडी स्टूडेंट्स? इंटरनल फ्लो. इंटरनल फ्लो का क्रॉस सेक्शन पाइप का कैसे भी हो सकता है. स्क्वायर डक्ट हो सकती है, ट्रायंगुलर डक्ट हो सकती है, रेक्टेंगुलर डक्ट हो सकती है, सर्कुलर डक्ट हो सकती है. मींस पाइप हो सकता है और इसमें से फ्लो ऐसा जाएगा. तो यहाँ ये जो पॉइंट्स है सारे, दीज आर नथिंग बट व्हाट रे? सरफेस टेम्परेचर टीएस, टीएस एंड टीएस. एंड इसमें से जो एयर जाएगी, there is a entry to the air and there is exit to the air. So here entry temperature is denoted as T1 and exit temperature is denoted as T2. T1 T2 T1 T2 ये सिनेरियो होगा. तो आप बोलेंगे सर व्हाट इज द यूज ऑफ T1 एंड T2? दैट विल हेल्प यू टू डिटरमाइन T इंफिनिटी, T सराउंडिंग. अभी आप बोलेंगे सर एयर है, एयर अंदर गई, एयर यहां से बाहर गई, तो एयर का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है हीट एब्सॉर्ब करके, या हीट डिक्रीज हो रहा है हीट रिलीज करके, जो भी हीटिंग या कूलिंग में. तो उसका टेम्परेचर फ्लूइड का T1 से लेके T2 तक बदल रहा है. तो फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसे जानेंगे? सो T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2. तो रिमेंबर इंटरनल फ्लो में हमेशा इनलेट टेम्परेचर एंड एग्जिट टेम्परेचर्स आर जनरली नोन टू यू, दे आर नोन टू यू. तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का क्या करें? दोनों एयर के या वाटर के टेम्परेचर है, एक इनलेट है और एक एग्जिट है. तो उसका फायदा क्या है? फ्रॉम दिस यू विल गेट द आंसर ऑफ T इंफिनिटी. एंड इसीलिए मैंने यहां बोला था, देखो सराउंडिंग टेम्परेचर इज गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दिस इज इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या? डायरेक्टली नहीं बोला है सराउंडिंग कितना है, उन्होंने क्या दिया है? एंट्री दिया है और एग्जिट दिया है. तो आपको करना क्या है? उन दोनों का एवरेज लेना है. एंट्री प्लस एग्जिट डिवाइडेड बाय 2, दैट बिकम्स योर T इंफिनिटी, सराउंडिंग टेम्परेचर. बट अगर फ्लो फोर्स कन्वेक्शन है और एक्सटर्नल फ्लो है, तो एक्सटर्नल फ्लो में आपको ये T1 T2 अलग से नहीं दिया जाएगा. दे विल गिव ओनली T इंफिनिटी. एक ही टेम्परेचर होगा और वही सराउंडिंग होगा, जस्ट लाइक नेचुरल कन्वेक्शन. लेकिन फोर्स में इंटरनल फ्लो के लिए एंट्री और एग्जिट आपको दिया जाएगा, उससे आपको T इंफिनिटी कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया. दिस इज जस्ट एवरेज ऑफ बोथ द टेम्परेचर. लेकिन अगर यही एक्सटर्नल फ्लो रहता फोर्स कन्वेक्शन में, तो आप सिर्फ एक ही टेम्परेचर आपको गिवन होगा T इंफिनिटी, वहां कैलकुलेशन करने की नौबत ही नहीं आएगी. सो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. Yes, sir. या इफ यू आर हैविंग Yes, एनी sir. डाउट यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क मी द क्वेश्चन. ठीक है. इसके बाद फॉर्मूला आएगा एलसी का. क्या होगा इस केस में? फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन पेरीमीटर. सो लेट्स टेक ए एग्जांपल ऑफ पाइप. पाइप मीन्स ये पहला वाला एग्जांपल. आप बताओ मुझे इसका क्रॉस सेक्शन क्या आएगा? ये अगर डायमीटर है तो व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया? LC इज इक्वल टू 4 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर. क्या हुआ रे अलोंग द क्रॉस सेक्शन? पेरीमीटर मीन्स व्हाट रे? ये सर्कल की लंबाई कितनी है बताओ? पाई डी ना. पेरीमीटर अलोंग द क्रॉस सेक्शन पाई डी. तो इसमें से एक डी जाएगा, ये पाई जाएगा, 4 जाएगा, पाई जाएगा. तो LC is diameter of the pipe. I will cite one another example just like rectangular duct. ये डायमेंशन आपका A है और ये डायमेंशन B है. तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया? A into B ना. Yes, sir. LC is 4 into what is area of cross section? A into B. And what is the perimeter ray? Perimeter means क्रॉस सेक्शन के अलोंग चारों साइड की लंबाई की एडिशन.
ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बताओ a प्लस बी इंटू 2 करूं क्या स्टूडेंट्स? अरे यस और नो? या Yes, a sir. प्लस बी प्लस a प्लस Yes, बी sir. ऐसे किया तो भी चलेगा ना? यस? Yes. So Yes, sir. this is your characteristic length LC. So I think you got the point how to do it. अभी फोर्स कन्वेक्शन में एक फ्लो बाकी हुआ, ये इंटरनल हुआ, इसमें अभी एक्सटर्नल फ्लो भी बचा हुआ है. सो व्हाट टू डू? फोर्स कन्वेक्शन में अभी क्या बचा हुआ है? एक्सटर्नल फ्लो अगर है तो व्हाट टू डू? फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लेट and the flow is taking place in this direction. So what is the LC? In this case flow over plate. ये कौन सी केस है रे? फ्लो ओवर प्लेट. तो LC is dimension along the flow. डायमेंशन अलोंग द फ्लो. फ्लो अगर इस तरह हो रहा है तो ये डायमेंशन लेना पड़ेगा आपको. लेट्स से ये है आपका यल, तो यल सी बिकम्स यल. लेकिन मान लो कि डायग्राम यही है लेकिन फ्लो हो रहा है ऐसे, and this dimension is b and this dimension is a. Anybody can tell me student what is the LC? Hello, what is the LC? The flow is in which direction? B or A? B. Sir, B. So in this case LC is B. B. So this is important. Now I will go ahead continuing the same formulas. फोर्स कन्वेक्शन में किसके फॉर्मूले है? अभी मैं एक्सटर्नल फ्लो डिस्कस कर रहा हूं. एक्सटर्नल. तो अभी आप बोलेंगे सर प्लेट अगर वर्टिकल है तो क्या करेंगे? ये आपका ए है और ये आपका बी है एंड फ्लो कैसे हो रहा है इसमें? ऐसे हो रहा है. एनीबडी कैन टेल मी एलसी? फिर से वही लॉजिक, डायमेंशन अलोंग द फ्लो. कम ऑन, बी ना? Yes, sir. लेकिन फ्लो अगर ऐसे हो रहा है तो A. फ्लो अगर ऐसे हो रहा है तो एलसी इज ए. समझ गए आप? Yes, sir. या नाउ फ्लो ओवर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर. सॉरी, अगर ये वर्टिकल किया है तो मैं वर्टिकल सिलेंडर लेता हूं. फ्लो ओवर वर्टिकल सिलेंडर. एनीबडी स्टूडेंट्स? ये डायमेंशन डायमीटर है और ये डायमेंशन यल है एंड द फ्लो विल टेक्स प्लेस ओवर द ऑब्जेक्ट लाइक दिस. हाँ, कम ऑन. So LC is what? L. Sir. Length. L. Because L. along the dimension. Along the Yes, sir. dimension. अभी एक ही बचा है, वो लिस्ट करता हूं मैं. फ्लो ओवर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर और स्फीयर, दोनों के लिए एक ही. हॉरिजॉन्टल सिलेंडर कैसे होगा रे? ऐसे. एंड स्फीयर क्या होगी? ऐसे. तो इसके लिए LC क्या होगी? इट्स ओनली डायमीटर. LC इज डायमीटर. चाहे वो नेचुरल कन्वेक्शन हो या फोर्स कन्वेक्शन हो, LC इज डायमीटर. बट रिमेंबर इट इज अ एक्सटर्नल फ्लो. इंटरनल फ्लो हुआ तो ये पाइप, इट इज नॉट सिलेंडर, इट इज पाइप. उससे अंदर से कुछ फ्लो हो रहा है. इस केस में इट इज जस्ट लाइक अ सॉलिड रॉड and the flow is happening externally not internally. Make a difference. समझ गए स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो ये हुआ LC. तो आई थिंक इन द प्रॉब्लम आई हैव कंप्लीटेड सेकंड स्टेप. पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम नेचुरल कन्वेक्शन का है या फोर्स कन्वेक्शन का है? ये हमारा पहला स्टेटमेंट था. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम टाइप. दूसरा स्टेप क्या है रे हमारा? फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक लेंथ LC. ये दो स्टेप्स हो गए प्रॉब्लम के. मैं पैरेलली जा रहा हूं. नेचुरल का कैसे सॉल्व करना है, फोर्स का कैसे सॉल्व करना है. नाउ आई विल गो टू द थर्ड केस, थर्ड स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, अभी मैं नेचुरल कन्वेक्शन को पहले खत्म करता हूं एंड देन फोर्स कन्वेक्शन, क्योंकि यहाँ कॉलम बनाने में मुझे मुश्किल होता है छोटे स्क्रीन के ऊपर. तो मैं पूरा नेचुरल कन्वेक्शन पहले खत्म कर देता हूं. सो नंबर थर्ड, नेचुरल कन्वेक्शन में आपको निकालना होता है ग्राशॉफ नंबर. उसके लिए फॉर्मूला है बीटा जी डेल्टा टी LC क्यूब अपॉन न्यू स्क्वायर. इसके मीनिंग लिख दे. थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड होगा आज,
क्योंकि वैसे भी आपको क्लासेस नहीं है उसके बाद, तो थोड़ा सा लंच लेट कीजिए। तो इसमें हर एक चीज मैं लिख रहा हूं और उसका फॉर्मूला भी लिख रहा हूं। व्हाट इज बीटा? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, व्हाट इज द फॉर्मूला रे? 1 अपॉन टी मीन फिल्म, टी मीन फिल्म टेम्परेचर, एंड इसका यूनिट होता है केल्विन रेज टू -1। तो अभी आप बोलेंगे सर टीएमएफ कैसे निकालेंगे? एनीबॉडी? टीएमएफ इज इक्वल टू टीएस प्लस टी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। तो प्रॉब्लम में आपको सरफेस टेम्परेचर दिया जाता है, आपको सराउंडिंग टेम्परेचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिया जाएगा। तो टीएस प्लस टी इंफिनिटी अपॉन 2 से टीएमएफ मिलेगा। उसको सिर्फ ध्यान रखिए, वो मिलेगा आपको सेल्सियस में ज्यादातर, बिकॉज इन द न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द टाइम द यूनिट इज गिवन इन सेल्सियस। आपका काम क्या है? यू नीड टू कन्वर्ट इन केल्विन, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना है वो आइडियल गैस इक्वेशन से आया है। कल मैंने डेरिवेशन बताया आपको। एंड इन आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर केल्विन में लिखा जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसीलिए हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इस फॉर्मूले में पुट करो तो आपको बीटा का आंसर मिल जाएगा, यूनिट है केल्विन रेज़ टू -1। तो मुझे लगता है ये हो गया। अभी जी इज व्हाट रे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू सबके पास होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंख मूंद के डाल दो वैल्यू, तो जी हो गया। अभी क्वेश्चन आता है डेल्टा टी। कन्वेक्शन किस में हो रहा है रे? इट हैपेंस इन सॉलिड एंड फ्लूइड। तो सॉलिड टेम्परेचर इज टीएस एंड फ्लूइड टेम्परेचर इज टी इंफिनिटी। सो विच वन इज हॉटर? हॉट कौन सा भी हो सकता है, टी इंफिनिटी माइनस टीएस और टीएस माइनस टी इंफिनिटी। बोथ ऑप्शंस आर राइट डिपेंडिंग ऑन विच इज हॉट एंड विच इज कोल्ड। तो मैंने लिखा यहाँ टीएस माइनस टी इंफिनिटी, बट कभी कभी वो टी इंफिनिटी माइनस टीएस भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज डेल्टा टी। अभी आप बोलेंगे सर इसको सेल्सियस में रखो या केल्विन में रखो? रिमेंबर, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल्सियस माइनस सेल्सियस करो या केल्विन माइनस केल्विन करो, उसमें कोई फर्क नहीं आता। प्रॉब्लम में जनरली सेल्सियस सेल्सियस दिया जाता है, तो सिंपली डिफरेंस करो। एंड एलसी का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज formulas are already over in second step. Formulae given in step 2 already mentioned. Okay? तो LC के लिए मैं टिक कर देता हूं। just 1 minute स्टूडेंट, अनली का तुम्ही सॉफ्ट कॉपी, just 1 minute, just hang on please. SOS ला लागणारे सगळे सब्जेक्ट त्यात आहेत। नाही, फक्त मिडकॉमचं दिलंय का तुम्ही? पण याच्या व्यतिरिक्त SOS ने काही ऑफरच नाही केलेलं का? मिडकॉमला दुसरे ऑफर केले आहेत आणि अदर स्कूलचे पण आहेत, त्याचे पण सर्वांच्या सेंट्रली साईन घेतला आहे. नाही, आता तुम्ही मला मिडकॉमचं आणून दिलं, पण आमच्या मुलांनी फूड टेक्नॉलॉजीचं जर MDM घेतलेलं असेल तर त्याचं नाव कुठे आहे? ऑफरच केले नाही ना, म्हणजे फक्त मिडकॉमचंच ऑफर केलंय का आमच्या मुलांनी? एसओसीचे काही सब्जेक्ट आहेत, एसओसीचे काही सब्जेक्ट आहेत, त्यांची लिस्ट आहे ना सर अशीच? हा, मी त्यांची सर म्हणजे सेंट्रली साईन करून पाठवतो, सर्वांना साईन घेण्यासाठी पाठवतो. ती पाहिजे मला. सगळे अर्जंट बेसवर मिडकॉमची लागते म्हणून मिडकॉमची. नाही ना, मला सगळंच हवं आहे. आमच्या मुलांनी जे MDMच्या बकेट घेतलं ना त्याची सगळी लिस्ट हवी होती मला. किती वेळ आहे त्याला? आता होईल सर, उद्यापर्यंत होईल, पण सवय लावा सर. लोक तुम्ही शेटे सरांना सांगा ते समय वर्कआउट होणार. आता आपलं बोलणं रेकॉर्ड झालं यात, ठीक आहे. ठीक आहे स्टुडंट्स, मला हे लवकरात लवकर सबमिट करा. So LC is already over, so I need not to repeat it again. Is that clear, students? Yes, sir. Now I will come to nu. Nu means Yes, sir. what? Nu means kinematic viscosity. Whatever I am writing is visible ना? Kinematic viscosity. इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड. नाउ आप बोलेंगे ये वैल्यू कहां से लेंगे?
It's given in the numerical in properties. Nu value, that is kinematic viscosity. Nu, it's not gamma. Nu kinematic viscosity, इसका unit होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड. That is generally given in the numerical, so you need not to worry about it. So I think everything is known now. You get the value of gr. You will get the value of gr. Is that clear? Yes sir. डेल्टा टी का यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस. तो सारे यूनिट भी मैंने लिख लिए. एलसी किस में होगा रे? मीटर में. हेलो स्टूडेंट्स, mm सेंटीमीटर नहीं चलेगा. कन्वर्ट इट इज इन मीटर. ठीक है. आई विल गो फर्दर. स्टेप नंबर 4, नेचुरल कन्वेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय स्टेप नंबर 4 क्या है? प्रांडल नंबर. वी नीड टू डिटरमाइन द प्रांडल नंबर. समटाइम्स इट इज गिवन in the problem directly. It is given in the directly. But if it is not given, then how to do it? If it is given directly, use the value. But if it is not given, you have to use the formula mu Cp by K. This is the first formula. How it comes, that I will tell you in the classroom in theory lecture in next week. ये formula आया कहाँ से, ये बाद में बताऊंगा मैं. But ये formula आपको use करना है. And there is one another option, nu upon alpha. न्यू अपॉन अल्फा. तो ये दो फॉर्मूले यूज करके प्रांडल नंबर को निकाला जा सकता है. तो हर एक का मीनिंग लिखवा देता हूं. तो हियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यू, व्हाट इज सीपी, व्हाट इज के, व्हाट इज न्यू, व्हाट इज अल्फा. डिपेंडिंग ऑन द डेटा अवेलेबिलिटी, यू हैव टू चूज द राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रांडल नंबर. अगर वो ऑलरेडी गिवन है प्रॉब्लम में, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये फॉर्मूले तभी यूज होंगे जब प्रॉब्लम में प्रांडल नंबर नहीं दिया जाएगा. प्रांडल नंबर तो हमें लगता है, तो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे. तो व्हाट इज म्यू? म्यू इज डायनामिक विस्कोसिटी. तो आप बोलेंगे कहां होगी सर? ये न्यूमेरिकल में मेंशन होगी, आपको केयर करने की जरूरत नहीं है. फ्लूइड की प्रॉपर्टी है डायनामिक विस्कोसिटी इज गिवन इन द प्रॉब्लम. उसका यूनिट हो सकता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और kg per meter second. both units are correct. दोनों इक्विवेलेंट यूनिट्स है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. म्यू. Cp is what? स्पेसिफिक हीट ऑफ ए फ्लूइड. स्पेसिफिक हीट, फ्लूइड के प्रॉपर्टीज है ये. स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड, इसका यूनिट क्या होगा रे? जूल पर केजी केल्विन. एंड हियर इज द प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ द टाइम this Cp value in the numerical, it is given as kilojoule per kg Kelvin. I think 99% it is given in kilojoule per kg Kelvin. Your job is to convert it into joule per kg Kelvin. How to do it, Ray? Multiply by 1000. I will give an example. For example, specific heat they will give for air as Cpa is 1.005 kilojoule per kg Kelvin. Convert it into joule per kg Kelvin as 1005. Am I right, student? Multiply by 1000. So this is very very important step. अगर वो ऑलरेडी जूल पर केजी केल्विन में है, वो जो भी 1% 2% चांस है, अगर वो ऑलरेडी जूल में है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. यूज एज इट इज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. यहां मैं स्टार करके रखता हूं. स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक हियर. किलो जूल है तो जूल करो, जूल है तो जूल ही रखो. तो ये म्यू हुआ, सीपी हुआ. एंड के इज नॉट केल्विन. दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड. चाहे वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, एनी गैस हो सकता है, एनी फ्लूइड लिक्विड हो सकता है. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, इसका यूनिट क्या होगा? वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस या केल्विन. आप बोलेंगे कहां से मिलेगा? न्यूमेरिकल में ये गिवन डेटा होगा. तो आई थिंक म्यू आपके पास है, Cp है, K है, गिवन डेटा है. कैलकुलेट करो, प्रांडल नंबर का आंसर मिल जाएगा आपको. अभी आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं क्योंकि ये डेटा नहीं है. तो उसके जगह न्यू दिया जाएगा. न्यू मीन्स व्हाट? काइनेमेटिक विस्कोसिटी. थोड़ी देर पहले ही बात की मैंने. काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड. अगर ये दिया तो इसका मतलब सेकंड फॉर्मूला यूज करना है मुझे. एंड अल्फा होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी. क्या? अल्फा का मतलब है थर्मल डिफ्यूजिविटी. तो न्यू और अल्फा दिया है, इसका मतलब पहला फॉर्मूला डिस्कार्ड हो गया एंड दूसरा फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. तो थर्मल डिफ्यूजिविटी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड.
काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, वही यूनिट अल्फा का भी है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दोनों यूनिट कैंसिल होके प्रांडल नंबर बिकम्स यूनिटलेस एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द डायमेंशनलेस नंबर। ओके, तो न्यू और अल्फा दिया तो सेकंड फॉर्मूला, और म्यू सीपी और के दिया है तो पहला फॉर्मूला, एंड प्रांडल नंबर को कैलकुलेट करो। Sometimes you don't require formula because you are lucky enough. Why? Because Prandtl number is given directly in the problem. Okay, this is step number 4. Now I will go to step number 5. Use given correlation. Use given correlation in the problem. But इस कोरिलेशन को सिलेक्ट करने के लिए आपको कोरिलेशन को चूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चूज प्रॉपर कोरिलेशन। अभी आप बोलेंगे सर ये क्या है? अगर मोर देन वन कोरिलेशन मेंशन है प्रॉब्लम में, बने बनाए फॉर्मूले मींस कोरिलेशन जो पास्ट रिसर्चर ने बना के रखे हैं, अगर मोर देन वन स्टेटमेंट वहां दिए हुए हैं तो आपको दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, या 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो आपको एक ही चूज करना है। अगर एक है तो अच्छा है कि आपको चॉइस करने की जरूरत नहीं, वही यूज करना है। बट इफ मोर देन वन, तो आप बोलेंगे सर कैसे चूज करें अगर मोर देन वन कोरिलेशन है? तो कैसे देंगे पता है क्या? एक नसेड नंबर कोरिलेशन का फॉर्मूला देंगे। यहां क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा, और यहां लिखा आएगा GR-PR प्रोडक्ट 10⁻⁴ है, 10⁻⁹ है, इनके बीच में अगर आ गया तो इसको यूज करो, and Nusselt number is equal to some another formula they will give to you. GR-PR प्रोडक्ट 10⁻⁹ और 12 के बीच में है, तो इसको यूज करो। तो अभी आप बोलेंगे सर कैसे करें इसको? तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये देखो स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 को जाता हूं मैं। स्टेप नंबर 3 से आपको मिला है GR, स्टेप नंबर 4 से मिला है आपको PR प्रांडल नंबर। तो आपको करना क्या पड़ेगा? GR और PR का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और उसको 10⁻⁹, ये देखो बॉर्डर क्या है स्टूडेंट्स, 10⁻⁹ इज इंपॉर्टेंट। अगर लेस देन 10⁻⁹ रहा तो पहले वाला यूज करो, ग्रेटर देन 10⁻⁹ रहा ये प्रोडक्ट, तो आपको दूसरे वाला कोरिलेशन चूज करना है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स, एवरीबडी? यस सर। या लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, ये जो कोरिलेशन होते हैं ना वो ऐसे होते हैं 10⁻⁴ लेस देन और इक्वल टू रेली नंबर RA 10⁻⁹, एंड 10⁻⁹ लेस देन रेली नंबर लेस देन 10⁻⁴। तो आप बोलेंगे सर ये रेली नंबर है क्या? रेली नंबर इज नथिंग बट GR-PR प्रोडक्ट, बस कुछ नहीं है वो। GR-PR को मल्टीप्लाई करने से जो नया नंबर आता है उसको बोलते हैं रेली नंबर, अनदर डायमेंशनलेस नंबर व्हिच इज डेसिग्नेटेड बाय RA। तो कुछ अलग नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम में कोरिलेशन शायद GR-PR लिखा जाएगा या रेली नंबर, बोथ आर सेम। सो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर हाउ टू अंडरस्टैंड कौन सा कोरिलेशन चूज करना है। समझ गए? यस सर। और इसमें एक होता है ना, अगर एक कोरिलेशन है ना तो कोई इश्यू ही नहीं, वो डायरेक्टली यूज करो। Just 1 minute, students. Just 1 minute. I want to add some slides because all the slides are finished. Just 1 minute. थोड़ा पेशेंस रखिए, मुझे पता है कि टाइम हो चुका है, बट आई नीड टू फिनिश दिस। तो हम थे यहाँ, ठीक है। हाँ, प्लीज टेल मी द क्वेश्चन स्टूडेंट, एनीबडी हैज क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन नहीं है तो कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस सर। ठीक है, तो कोरिलेशन अगर एक ही है तो नो चॉइस, 2 है तो आपको इस बेस पे करना पड़ेगा।
Number 6, determination of H value, that is convective heat transfer coefficient. H is equal to NuK by LC. This is the formula. What is Nu? Nusselt number. अभी कैलकुलेट किया हमने. कहाँ कैलकुलेट किया रे? ये देखो, ये नसेल्ट नंबर कोरिलेशन से मिला हमें. ये फॉर्मूले से मिला ना, बने बनाए फॉर्मूले गिवन होंगे आपके, उसमें से आप एक आधा चूज करेंगे और नसेल्ट नंबर को कैलकुलेट करेंगे. इट इज डायमेंशनलेस नंबर, नो डायमेंशन फॉर इट. तो ये हुआ नसेल्ट नंबर. उसके बाद के कहां से लाएंगे रे? इट्स गिवन वैल्यू. ये प्रॉपर्टी आपको दी जाएगी, गिवन वैल्यू होगी. और एलसी कहां से लाएंगे? हेलो, एलसी आई थिंक इट इज स्टेप नंबर 2, बराबर ना रे? आपने इसमें बहुत सारे फॉर्मूले देखे नेचुरल कन्वेक्शन में, तो स्टेप नंबर 2 से एलसी मिलेगा आपको, बट वो होना चाहिए मीटर में. के किस में होना चाहिए? वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस और वाट पर मीटर केल्विन. तो जो डेटा दिया है वो एज इट इज यूज करो. नसेल्ट नंबर आपको मिलेगा स्टेप नंबर 5 से, स्टेप 5 से मिलेगा. तो यू विल गेट H. व्हाट इज द यूनिट ऑफ H? वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस. तो H मिलेगा आपको. स्टेप नंबर 6 हो गया है. नाउ आई विल गो टू द स्टेप नंबर 7, हीट ट्रांसफर रेट. क्या निकालना है आपको? हीट ट्रांसफर रेट. Q is equal to, formula is HA Ts minus T infinity. HA Ts minus T infinity. इससे आपको मिल जाएगा हीट ट्रांसफर रेट. तो प्रॉब्लम में ज्यादातर यही पूछा जाता है एट द एंड, जो स्टेटमेंट होता है क्वेश्चन मार्क. डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द प्लेट, फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम द स्फीयर वगैरह वगैरह. तो हीट ट्रांसफर रेट मीन्स क्यू निकालना है हमें. तो अभी आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे? H इज व्हाट रे? कहां से आएगा? स्टेप नंबर 6 से आएगा. ऑलरेडी हमने 6 में कैलकुलेट किया है H. एरिया कहां से आएगा बताओ? व्हाट इज एरिया? दिस इज सरफेस एरिया. Surface area. अवेलेबल फॉर कन्वेक्शन. अवेलेबल फॉर Convection. इट्स नॉट अ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया. अभी आप बोलेंगे सर मुझे एग्जांपल दे दो कि कौन सा एरिया ले ले. तो हम एग्जांपल के तौर पे आगे जाते हैं. फॉर एग्जांपल एक प्लेट दे रखी है और उन्होंने फ्लो दिया है ये डायरेक्शन. तो आपका एलसी क्या हुआ रे? डायमेंशंस अलोंग द फ्लो. तो एलसी एल हो गया नेचुरल कन्वेक्शन में. अभी एरिया क्या हुआ? अभी आपको ये एल है और ये स्मॉल एग्जांपल, ये ए डायमेंशन स्मॉल ए दिया हुआ है. तो इस केस में सरफेस एरिया क्या होगा? कैपिटल ए इज इक्वल टू एल इंटू स्मॉल ए. एम आई राइट स्टूडेंट्स? Yes sir. Yes ये एरिया होगा ये. अभी आप बोलेंगे सर ये फ्लो प्लेट के ऊपर हो रहा है, तो ऊपर का साइड भी और नीचे का साइड दोनों लेने पड़ेंगे सर. तो आपने एरिया तो सिर्फ ऊपर के साइड का ही लिया है, नीचे का नहीं लिया है सर. तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो आप बोलेंगे ये कैसे समझेंगे? तो प्रॉब्लम में कहा तो भी मेंशन होगा कि the flow is taking place on only on one side of the plate. So in this case this is correct what I have written. But if it is mentioned in the problem, if the flow is taking place from both sides of the plate, so in that case what is the value of area? Anybody? Multiply by 2. Multiply by 2. Both sides of plate should be considered. And यहाँ only single side. And अभी आप बोलेंगे sir they have not mentioned anything in the problem, so in that case do your assumption. You write considering both sides of the plate, I have written as twice LA. Is that clear? Yes sir. And ये L और ये तो आपको डायमेंशन दिया जाएगा प्लेट का, उस हिसाब से आप सब्स्टिट्यूट करो और एरिया निकालो. Is that clear students? हेलो. Yes sir. अगर ये सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर मान लो, और इस सिलेंडर के ऊपर ऐसा फ्लो हो रहा है, तो व्हाट इज द एरिया रे? पाई इंटू डी इंटू एल. ये सारा एरिया आएगा ना साइड का. हेलो, जिसके ऊपर वो टच करके जा रहा है. देन अगर ये स्फीयर है, स्फीयर ऑफ डायमीटर डी,
तो व्हाट इज द एरिया रे? स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हाँ। डायमीटर का रेडियस करो एंड पुट इट इन दिस फॉर्मूला, तो एरिया बन जाएगा। लेकिन वो रेडियस है, डायमीटर का आपको आधा करना पड़ेगा एंड पुट इन दिस फॉर्मूला, तो एरिया बनेगा। सो दिस इज सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। आई थिंक यहां मैंने एच को एड्रेस किया स्टेप नंबर 6 से, एरिया को एड्रेस किया। अभी टीएस और टी इंफिनिटी मैंने बोला ये दीज आर जनरली हेलो गिवन वैल्यूज इन नेचुरल कन्वेक्शन प्रॉब्लम, तो आपको इसके बारे में केयर करने की जरूरत नहीं, वो गिवन होंगे। सरफेस का कौन सा है एंड सराउंडिंग का कौन सा है। तो सराउंडिंग में T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 करने की भी जरूरत नहीं, वो प्रॉब्लम सिर्फ फोर्स कन्वेक्शन में आता है। नेचुरल कन्वेक्शन में सराउंडिंग का एक ही वैल्यू होता है, सरफेस का एक ही वैल्यू होता है हमेशा, तो वो डायरेक्टली गिवन होगा, तो उससे हमें Q मिलेगा। नंबर 8 कभी कभी यूज करना पड़ेगा, नंबर 8 स्टेप नंबर 8 कभी कभी लगेगा वो। डिटरमाइन rate of heating or cooling, determine rate of heating or cooling. Rate of heating or cooling is denoted by dt by dt. Rate means per unit time, dt by dt. So how to determine this rate of heating or cooling? तो आपके पास ऑलरेडी Q आ चुका है, Q मिला है अभी स्टेप नंबर 7 से। इसका फॉर्मूला m सॉरी इसमें मुझे इरेज करना पड़ेगा, m डॉट नहीं है वहां। Q इज इक्वल टू एम सी पी डी टी बाई डी टी। अभी आप मुझे बोलो हीटिंग और कूलिंग किसका होगा रे? सॉलिड का होगा ना, एम आई राइट और नॉट? यस सर। बिकॉज हीट इज ट्रांसफर्ड और गेन फ्रॉम द फ्लूइड। तो डिटरमाइन रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑफ सॉलिड, ऐसे वो आपको पूछेंगे। सॉलिड सरफेस, ये आपको क्वेश्चन हो सकता है एक आधे दूसरे प्रॉब्लम में। तो आपके पास Q ऑलरेडी है, कहां से रे? स्टेप नंबर 7 से। ये देखो यहां से आपको Q मिला हुआ है, ये Q स्टेप नंबर 7 में। मास जनरली गिवन इन द प्रॉब्लम, गिवन। लेकिन अगर नहीं दिया है तो मास का फॉर्मूला है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैं यहां V नहीं लिख रहा हूं वॉल्यूम को, क्योंकि V वेलोसिटी के साथ आप कंफ्यूज करेंगे, तो मैंने रो इंटू वॉल्यूम पूरा लिखा है। तो m इंटू रो इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का भी फॉर्मूला है, कैसे रे? अभी ये प्लेट है, इसके 3 डायमेंशन है, A, B और C। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ प्लेट रे? A इंटू B इंटू C। सिलेंडर है, दिस इज डायमीटर एंड दिस इज लेंथ। व्हाट इज द वॉल्यूम रे? 5/4 d स्क्वायर इंटू L। एंड अगर स्फीयर है तो व्हाट इज द वॉल्यूम रे? 4/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर को R में कन्वर्ट करो एंड यूज द फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। एंड डेंसिटी इज जनरली गिवन फॉर द सॉलिड मटेरियल। हेलो, यहां भी प्रॉब्लम है। हीटिंग और कूलिंग किसके लिए है रे? उन्होंने पूछा है सॉलिड के लिए। तो आप ये जो रो लेंगे ना, दैट हैज टू बी फॉर सॉलिड। तो यहां प्रॉब्लम में एयर का भी मींस सराउंडिंग का भी रो दिया होगा फ्लूइड का, एंड सॉलिड का भी रो दिया होगा। तो यू नीड टू सिलेक्ट इट प्रॉपरली। आपको हीटिंग और कूलिंग किसका निकालना है? सॉलिड का निकालना है। तो आपको डेंसिटी भी सॉलिड की ही यूज करनी है। यहां मिस्टेक होते हैं, क्योंकि रो के दोनों वैल्यू होते हैं, फ्लूइड के भी और सॉलिड के भी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज आप हीटिंग या कूलिंग सॉलिड का डिटरमाइन कर रहे हैं। एंड देन उससे बनेगा मास। अगर मास डायरेक्ट दिया है तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर दिया नहीं है, उसके जगह डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है, तो आपको यम निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। उसके बाद सीपी, सीपी जनरली गिवन इन द प्रॉब्लम, लेकिन अगेन दिस इज स्पेसिफिक हीट। तो आप किसकी लेंगे? सॉलिड की लेंगे, क्योंकि आप हीटिंग और कूलिंग किसका जान रहे हैं? सॉलिड का। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। एंड देन आपको मिलेगा क्या? dt बाई डी टी। कैसे? सिंपल, dt बाई डी टी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ये m अपॉन Cp किस तरफ? इसके डिनोमिनेटर पे ट्रांसफर होगा mCp।
and again very important, this Cp should be, come on, hello, last time बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, it has to be in joule per kg Kelvin. hello, am I right or not? किलो जूल नहीं होना चाहिए, it should be in ज्यादातर किलो जूल में होगा, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है जूल में. अगर जूल में है तो एज इट इज रखो, कोई इश्यू नहीं, and then you will get the answer of dt by dt. Now the question comes, sir इसका यूनिट क्या लिखे? This is called as rate of heating or rate of cooling. इसका यूनिट क्या लिखे? dt क्या है रे? डिग्री सेल्सियस, and small dt क्या है? टाइम, सेकंड. So this is the unit of dt by dt. जो आंसर आएगा उसको ये यूनिट अटैच करो, and this is the end of the problem. तो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस ऑल द स्टेप्स ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन. इसके सिवा, इस प्रोसीजर के सिवा प्रॉब्लम बाहर जा ही नहीं सकता. ये 8 स्टेप कभी यूज करने पड़ेंगे, कभी नहीं करने पड़ेंगे. आप बोलेंगे सर कैसे? अगर आपको सिर्फ एच पूछा है तो आप 6 तक ही जाएंगे. अगर आपको हीट ट्रांसफर रेट पूछा है तो 7 स्टेप ऐड होगी. अगर आपको रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग पूछा है तो 8 स्टेप भी ऐड होगी. And now I am going for procedure for solving the numerical of, just next 10 minutes, procedure for solving of force convection problem. Number 1, number 1 नहीं, number 2. क्यों रे स्टूडेंट? Number 1 is already there, which is common. Identify the type of problem, natural convection or force convection. आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम इज ऑफ फोर्स कन्वेक्शन, तो नंबर 2 बनता है एलसी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. तो इसके फॉर्मूले मैंने कल बोला था. पहले मैं देता हूं इंटरनल फ्लो के फॉर्मूले, इंटरनल फ्लो, एंड यहां मैं लिखता हूं एक्सटर्नल फ्लो. मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए यहां टाइम जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये कल के लेक्चर में हुए थे, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं इसको. इंटरनल फ्लो में क्या रहे स्टूडेंट? थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको. हेलो, students, hello, are you there everybody? Sir, could you repeat? Yes, sir. नहीं, एलसी के फॉर्मूले वापस लिखने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी इट्स गिवन ना हियर. Yes, sir. Yes. राइट हैंड साइड कॉलम, सारे फॉर्मूले मैंने लिख के दिए हैं एलसी के, तो आई नीड नॉट टू राइट इट अगेन. तो सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, एलसी आपने डिटरमाइन किया. ओके, नाउ द थर्ड स्टेप. अभी हम फोर्स कन्वेक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्राशॉफ नंबर के जगह आएगा रेनॉल्ड नंबर, रो वी एलसी बाय म्यू. ये पहला फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला है वी एल सी बाय न्यू. तो अभी आप बोलेंगे सर कौन सा कब यूज होगा? इट इज टोटली डिपेंड ऑन विच डेटा इज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, विच डेटा इज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम और गिवन इन द प्रॉब्लम. अगर आपको डायनामिक विस्कोसिटी दी है म्यू, तो पहले वाला यूज करो. अगर आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है तो दूसरे वाला यूज करो. इसका यूनिट होगा क्या रे? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर सेकंड. अगर डायनामिक विस्कोसिटी है तो पहला फॉर्मूला, एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. दिस इज द जस्ट हिंट आई एम सेइंग, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको. तो ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया. लेकिन यहां प्रॉब्लम आता है, कभी कभी डेंसिटी, और ये जो v है वॉल्यूम नहीं है, वो इट्स अ वेलोसिटी. ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मीटर पर सेकंड. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. तो कभी कभी रो और वी अलग से नहीं दिए जाते, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? इन दैट केस दे विल गिव, तो यहां लिखता हूं मैं, व्हेन रो एंड वेलोसिटी v आर नॉट गिवन, तो फिर क्या दिया जाता है? मास फ्लो रेट. क्या दिया जाता है? मास फ्लो रेट m डॉट. बट यू नो व्हाट इज m डॉट?
m dot is area of cross section into velocity. Area of cross section, sorry, 1 minute. What is the formula of m dot? Rho area of cross section into velocity v. तो आपके पास m dot है, they will give m dot in kg per second to you, या kg per minute में होगा. अगर kg per minute में है तो हमारा काम क्या है, उसको kg per second में कन्वर्ट करना. अगर kg per hour में है तो भी आपको kg per second में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मास फ्लो रेट m डॉट मेरे पास है, kg per second में है वो. तो फिर आप बोलेंगे सर ये रो और v कैसे निकालेंगे? इट्स सिंपल. रो v इज इक्वल टू m डॉट अपॉन, इन दोनों को कंबाइन करो, दैट इज रो v प्रोडक्ट. रो v इज इक्वल टू m डॉट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो कैसे? सिंपल है. ये फ्लो ऐसे हो रहा है. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रे? AC becomes pi by 4 d square. AC becomes sir, a small request. Please. Could you finish quickly? Many have to go for mess. Just 5 minutes another. AC is pi yes, by sir. 4. Thank you. Just 5 minutes, Apurvo. AC is pi by 4 d square. अगर ये rectangular duct है तो anybody can tell me what is AC ray? This is A and this is B. Come on. AC is A into B. This is a cross sectional area. A into B. So इससे हमें मिलेगा रो V प्रोडक्ट, और ये उठा के हम डालेंगे कहाँ? यहाँ, रो इंटू V. अगर ये रो V सेपरेटली दिए हुए है प्रॉब्लम में तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, रेनॉल्ड नंबर मिल जाएगा. अगर न्यू दिया है तो सेकंड फॉर्मूला यूज होगा, नंबर 4th प्रांडल नंबर. इसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. द रीजन इज सारे फॉर्मूले नेचुरल कन्वेक्शन जैसे ही है. म्यू सीपी बाई के यूज करो या न्यू बाय अल्फा यूज करो. ये अगर यूज करना चाहते हो तो सीपी का यूनिट होना चाहिए जूल पर केजी केल्विन. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब प्रांडल नंबर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है. बहुत सारे प्रॉब्लम में वो डायरेक्टली भी दिया जाएगा तो उस समय फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. नंबर 5, कोरिलेशन को चूज करना. कोरिलेशन, प्रॉपर कोरिलेशन. तो यहां भी नसेट नंबर कि मोर देन 1 कोरिलेशन हो सकते हैं. एक दिया तो डायरेक्टली यूज करो, बट इफ मोर देन 1 है तो आपको बेस पे लैमिनर फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो, कौन सा फ्लो है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अगर आपका फ्लो इंटरनल फ्लो है, इंटरनल फ्लो के लिए इफ रेनॉल्ड नंबर वैल्यू इज ग्रेटर देन 4000 इट बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो. इफ रेनॉल्ड नंबर इज वैल्यू इज लेस देन 2000 इट बिकम्स लैमिनर फ्लो. इंटरनल फ्लो के लिए. एंड एक्सटर्नल फ्लो के लिए if Reynolds number is less than 5 into 10 raised to 5 then the flow is become laminar, and if Reynolds number is greater than 5 into 10 raised to 5 then it becomes turbulent. एक्सटर्नल फ्लो के लिए तो ये कंडीशंस आपको दिए जाएंगे, तो उसके हिसाब से प्रॉपर कोरिलेशन चूज करो एंड उस कोरिलेशन से आपको मिलेगा नसेट नंबर. दैट इज द स्टेप नंबर 5. just like natural convection. Next 6th step is to determine H. H is equal to NUK by LC, where NU is from step 5, K is given thermal conductivity of fluid and LC is step number 2, जो कि ऑलरेडी हमें फॉर्मूले से पता है, स्टेप नंबर 2. तो दैट इज 6. नंबर 7, हीट ट्रांसफर रेट Q. हीट ट्रांसफर रेट Q फॉर्मूला बनेगा HA TS माइनस T इंफिनिटी. एंड यहां याद रखने की जरूरत है, H पता है आपको. H कहां से आएगा? स्टेप 6 से आएगा. एरिया कहां से आएगा?
ये एरिया कौन सा रे? सरफेस एरिया, नॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर ये पाइप है तो कौन सा एरिया लेंगे रे आप? पाई डी इंटू एल, ये सारा एरिया जिसको ये एरिया वाटर टच होके जाएगा, तो दैट इज द सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर। टीएस कैसे आएगा? हाउ द टीएस इज कमिंग? टीएस इज गिवन इन द प्रॉब्लम, एंड व्हाट इज टी इंफिनिटी? T1 plus T2 divided by 2 for internal flow, क्योंकि इंटरनल फ्लो के लिए हमेशा एंट्री और एग्जिट दिया जाएगा, तो एवरेज करो, बट T इंफिनिटी इज इक्वल टू डायरेक्टली गिवन फॉर, एक ही टेम्परेचर होगा एक्सटर्नल फ्लो के लिए, इंटरनल के लिए सिर्फ एवरेज लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल के लिए एक ही टेम्परेचर होगा T इंफिनिटी डायरेक्टली, दैट इज गिवन। तो ये सारा पुट करो, आपको मिलेगा Q, एंड फाइनली रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग, रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग जस्ट लाइक नेचुरल कन्वेक्शन, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है यहाँ। क्या? Q तो आपको ऑलरेडी पता है, इट इज यम। अभी यहां मास नहीं आएगा क्योंकि यहां फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यम डॉट सीपी ऑफ फ्लूइड exit minus inlet temperature. So what is m dot? Remember यहां फर्क है नेचुरल में और इसमें, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड kg पर सेकंड में आएगा। ये फ्लूइड का है, सॉलिड का नहीं है। Cp स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड, सॉलिड का नहीं है ये जूल में होना चाहिए, जूल पर kg केल्विन। एंड T2 एंड T1 कम ऑन, exit and entry temperatures, exit and entry temperatures, ये तो गिवन होंगे। सो आई थिंक all 8 steps just like natural convection I have covered for forced convection। ये फॉर्मूले आपके पास ऑलरेडी बने बनाए हैं। now you have to by heart all the formulas and you have to understand the video recording lectures where I have going to take at least minimum 6 problems of natural and forced convection minimum. So you have to apply these formulas in the numericals. In video lecture you will understand ki how I have applied these formulas in that numerical, how I identified whether this problem belongs to natural or forced convection, whether it is laminar flow or turbulent flow, how I have selected right correlation, and how I have applied all these formulas. So that I will take in that recording in detail. If you are having any query in the recording, you can approach me anytime. Apurvo, that's it. Apurvo and team, that's it for today. I will call it a day today. Any query related with this lecture, you can approach me individually. Thank you. I am stopping the recording and I am just logging the attendance. Just 1 minute, be there. I think attendance has been already logged, so that I will consider.